Take out the standard textbook and let's discuss the objectives quickly. At least one on a bench. At least one on a bench. है? दो तो शुरू में. दो है किधर तो एक पास करो. ऑब्जेक्टिव में आंसर कुछ भी आ सकता है. Anything can come. Page number 68. 168. Page 168. Page 168. It is a very इसके वजह से लेट हुआ. standard textbook. Take out standard textbook fast. Page 168. उसमें ना टेक्स्ट बुक में लिसन नाउ. टेक्स्ट बुक में वो लोग ने सारा का सारा ऑब्जेक्टिव्स साथ में दिया हुआ है. मतलब ऑल सब्सिडरी बुक्स दे आर गिवन 4 परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक एंड पेटी कैश बुक सबका साथ में. जर्नल प्रॉपर वगैरह सब. तो राइट नाउ विल बी डिस्कसिंग ओनली ऑफ दोस 4 बुक. और कोई टेस्ट में भी वही 4 बुक का है. कैश बुक करवाने के बाद, पेटी कैश बुक करवाने के बाद बाकी का मैं करता हूँ. So what is a subsidiary book? Subdivision of journal. Record individual type of transaction. Subdivision of journal लिखा तो भी चलेगा. It is a subdivision of journal. इसका आंसर मिल जाएगा उधर. Kala.com. इसका और true or false का रीजन. What is cash book नहीं है, meaning of contra नहीं है, petty cash नहीं है. Fifth one. Which transactions are recorded in purchase book? Credit purchase of goods. Which sales are recorded in sales book? Credit sale of goods. Which transactions are recorded in journal proper? Those transactions that cannot be entered in any other journal will go in journal proper. उसमें इतना ही है one sentence में. One word first नहीं है. Second one, a bank account which the businessman prefers to open. Current account. Third नहीं है. Fourth one, subsidiary book in which only credit purchase of goods are recorded. Purchase book. Fifth one, subsidiary book in which return of goods sold on credit are recorded. Sales return book. Sixth नहीं है. Seventh नहीं है. Eighth one, a note issued by buyer to seller giving full details of goods returned. Buyer to seller. Buyer क्या बेचता है? Debit note. Seller क्या बेचता है? Credit note. Note issued by seller on receipt of defective goods from customer. That's credit note. Is this clear? Hello. Then Phillips पे first वाला को ठीक है. Cash column of cash book can never have credit balance. वो भी cash book में आएगा. Second नहीं है. Third one, source document to record transactions in sales book. Outward invoice. Credit purchase of machinery is recorded in journal proper. Subdivision of journal is known as subsidiary books. उसके बाद 7th one, entry for bad debts is recorded in journal proper. Bad debt to debtor है ना, तो JP में जाएगा. Journal proper. Then 8th नहीं है, 9th नहीं है. 10th one भी आएगा. Fixed amount is deposited for a fixed period in dash deposit account. Fixed deposit. उसके बाद true or false with reason. Journal is the book of secondary entry. False. Journal is the book of primary. Ledger is the book of secondary. Assets sold on credit are entered in sales journal. Sales journal is sales book. So assets sold on credit are recorded in sales journal. False. Goods sold on credit are recorded. या फिर assets sold on credit are recorded in journal proper. Goods sold on credit are recorded in sales journal. Cash and credit purchases are entered in purchase book. False. Only credit purchases are entered in purchase. Cash purchases are recorded in cash book. Cash sales are entered in sales journal. False. Only credit sales. Cash sales are entered in cash book. Got it? Sales journal, sales book, purchase journal, purchase book are all one and the same. Do you agree with the following statements? Trade discount, cash receipt, transactions, credit. See the 5th one उसमें. Credit purchase of machinery is entered in purchase journal. Disagree. It goes in
Journal proper. See the fifth one. Credit purchase of machinery is entered in purchase journal. Disagree. It goes in journal proper. Complete the following. First nahi hai. Second one. In journal proper only dash discount is recorded. Dash discount. Third one. Return of goods purchased on credit to the suppliers will be entered in dash journal. Return of goods purchased on credit. Purchase return journal. Fourth one. Assets sold on credit are entered in dash journal. JP. Journal proper. Fifth nahi hai. Sixth one. Credit purchase of goods are recorded in purchase book. Credit purchase of goods are recorded in purchase book. Mangogri. Seventh one nahi hai. Eighth one nahi hai. Ninth nahi hai. 10th one. In purchase book, goods purchased on dash are recorded. Credit based. Correct the following sentences and rewrite the same. Cash purchase of goods are recorded in purchase book. False. Credit purchase. Second nahi hai. Third one. Small and large business records all transactions in subsidiary book. Large businesses. Small ones record everything in single journal. उसके बाद calculate the following. Eighth one. Cash purchases are 1,60,000, TD 10%, CD 5%. What is the amount of net purchase? Net purchase is, अभी यहाँ पे वैसे तो नेट परचेज हमारा टीडी के बाद वाला होता है, बट अभी कैश परचेज के साथ टीडी सीडी दिया ना, तो नेट मतलब फाइनल एकदम टीडी सीडी के बाद. इज इट क्लियर? तो दैट विल बी 1,44,000 पे सीडी भी ले लेंगे -5%. That is 720. Is it clear? Hello. कैश परचेज होता है, फाइनली कैश परचेज होता है, बट वो नेट सेम कंसिडर करने का. टीडी सीडी दोनों माइनस करने के बाद. परचेज गुड फ्रॉम हरीश 12,000 at 7% TD. What is the amount of trade discount? 840. मिला सर पीछे में आते 136,800 बोला ना. टीडी सीडी दोनों लेने का. Got it? Sold goods sold 50 shirts at 300 per shirt and 40 trousers at 600 each. What is the amount of sales? 300 into 50 15,000. 40 into 600 24,000. 24 और 15 39,000. बराबर. Sold 30 jackets at 500 per jacket 8% DD. What is the amount of trade discount? तो 15,000 पे 8% कितना हो जाएगा? 1,200. 12. Complete the following table. Cash purchase 35, credit purchase 55. Total होता है 90. 90 minus 2,000 is 88,000 net purchase. समझा? फिर कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न किया तो 1,02,000 मिला. तो कितना होगा कैश सेल आपका? 45 plus 60 1,05,000 minus 3 1,02,000. Perfect. 45. Then cash sales 90 है, क्रेडिट सेल 1,10,000 है. टोटल हो गया 2,00,000. 2,00,000 minus 16,000. 1,84,000. 1,84,000. Fourth one. कैश परचेज है 70,000, क्रेडिट परचेज पता नहीं है, टीडी माइनस किया तो 162 मिला तो 180. 1,10,000 आएगा. समझा? 1,10,000. 70 plus 1,10,000 is 180. 180 minus 18 gives you 162. फिर ओपनिंग कैश बैलेंस नहीं है. सिक्स्थ वन. कैश सेल्स 6th का आंसर बोल रहे हो. 120 plus 140 टोटल इज 260. 260 इज टोटल सेल माइनस, ये मिस्टेक है एक्चुअली. सिक्स्थ वन का क्वेश्चन ही रॉन्ग फ्रेम लिया. 6th वन रॉन्ग है और 7th वन भी रॉन्ग है एक्चुअली. 6th और 7th दोनों रॉन्ग. इसको स्किप करो. 8th वन 9th वन 10th वन नहीं है. तो जो मैंने डिस्कस किया है समझ में आया ऑब्जेक्टिव्स में. जब पढ़ने जाओगे तो कैश बुक पेटी बैग कैश बुक वाले मत कर, तो तुमको आएंगे भी नहीं और अभी किया भी नहीं हमने. सॉरी, फिफ्थ के बाद इसमें बोल रहे हो ना अपना कैलकुलेट द फॉलोइंग. कैलकुलेट द फॉलोइंग में 6, हाँ वो 6 और 7 तो रॉन्ग है. 8 9 10 नहीं, 5th तक ही है. 5th तक ही है. क्लियर है ऑब्जेक्टिव्स?
Objectives are clear, all of you. Just refer to subsidiary books, ये 4 वाले और जर्नल प्रॉपर वाले, और यहीं से आएंगे आपके टेस्ट में, ठीक है। और पढ़ के आना मेहरबानी करके ये टाइम ऑब्जेक्टिव, डोंट लूज मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव्स लाइक लास्ट टाइम। Easiest way to score marks in objectives and you lose over there, okay, when you are in दूसरे का भरोसे पे, दूसरा आपके भरोसे पे, दोनों विरोध। चलिए, याद है लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड विथ समथिंग दैट वाज कॉल्ड एज कैश बुक। व्हाट इज कैश बुक? वो फॉर्मेट आपने ड्रॉ किया हुआ है, राइट? होमवर्क आया सबको? इजी था होमवर्क, टेक आउट होमवर्क। ये ड्रॉ किया है ना आपने, वापस मत करो, उधर ही सम करना है। होमवर्क ले लो फटाफट, 2 सम देना। टोटली कैसे? फर्स्ट सम में परचेज बुक में सुहास 12,000, विराट गुड्स खाली विराट 10683 and Kuldeep 8250. Total is 30933. Invoice numbers are 411212. Numbers थे, मिला? Sales book धीरज 11500. Invoice number 27. राजा गुड्स नहीं है, वो राजा है। 12141. Invoice number 88. सुरेश 6400. No invoice number. Total 30041. परचेज रिटर्न बुक सुहास, सब में गुड्स लिखा है, 0 मिलेगा। इसका नाम रहता है गुड्स, सुहास गुड्स, विराट गुड्स, कॉमन सेंस वापरना। सुहास इट इज 1200, डेबिट नोट नंबर 9 मिला। विराट 1170, डेबिट नोट नंबर 10 एंड कुलदीप 825, डेबिट नोट नंबर 11, टोटल 3195 मिला। हेलो। सेल्स रिटर्न बुक सुरेश धीरज 500, क्रेडिट नोट नंबर 14 है कि 14 एंड सुरेश 120, 115 की 50 115, टोटल इज 620, टोटल इज 620। इसमें नोट आ रहा है 8, देखिए वही आएगा ना, इनवर्ड है ना। इनवर्ड में परचेज के वक्त इनवर्ड इनवॉइस आता है। वी डोंट मेक ओनली एनीथिंग, वी डोंट सेंड ओनली हिज इनवॉइस, अवर इनवॉइस। सेल्स के वक्त अपना देते हैं, आउटवर्ड इनवॉइस। गॉट इट? सेकेंड सम में परचेज बुक में जया 13650, इनवॉइस नंबर 23। अमीना 12250, इनवॉइस नंबर 455। स्वीटी 2450, इनवॉइस नंबर 630, टोटल 28350। सेल्स बुक प्रिया 19100, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर 34। स्नेहा 13050, इनवॉइस नंबर 35। अमीना वापस 26650, इनवॉइस नंबर 36। कैलाश ट्रेडर्स 15040, इनवॉइस नंबर 37, टोटल 73840। परचेज रिटर्न बुक जया 4095, डेबिट नोट नंबर 49। स्वीटी 460, डेबिट नोट नंबर 50, टोटल 4555। सेल्स रिटर्न बुक प्रिया 3342, क्रेडिट नोट नंबर 87। कैलाश ट्रेडर्स 5180, क्रेडिट नोट नंबर 88, टोटल 8522। नहीं किया टोटल, 10 माइनस नहीं आता।
ना इजी सम में भी इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, हर्ट रहेगा, ये सब रॉन्ग, जीरो मिलेगा, जीरो। हाँ ये सब जीरो जीरो जीरो। इसमें पूरा 10 में से 3 मार्क, इसमें 10 में से 6 मार्क, 4 मार्क टोटल कर गया। मेरे को सॉरी बोल के मतलब नहीं है, मार्क्स तेरा जाएगा। चलो समझ में आया? परफेक्ट रखना एकदम, प्रेजेंटेशन, नंबर, टोटल्स। ओके, अभी वी आर स्टार्टिंग विथ कैश बुक नाउ। लिसन केयरफुली, व्हाट इज कैश बुक? रिमेंबर व्हाट इज Cash purchase and sales. it? Is a subsidiary book open to record cash and bank transactions of large values, big values. Is it clear? Smaller values they go in petty cash book. But as I told you in the chapter, don't judge it by the amount. Bada amount, chota amount, everything will go in cash book. Nothing will go in petty cash book. Is this clear? Hello? Now, it is the only journal which is a journal as well as ledger. तो यही कैश बुक है, यही कैश अकाउंट है, यही बैंक अकाउंट है। मतलब अगर कैश बुक ओपन करते हो तो अलग से कैश बैंक अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। सर हम तो ओपन करते थे, लेजर में कितनी बार कैश अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट बनाया, वो कब बनाते थे? लेजर में तो बनाते थे, लेकिन कब? जब कैश बुक मेंटेन करते थे तब, कि नहीं करते थे? नहीं, जब सिंगल जर्नल मेंटेन करते तब बनाते थे, तब सारे बनते हैं। लेकिन जब कैश बुक बना दिया ना आपने, सब्सिडरी बुक वाला अप्रोच ले रहे हो लार्जर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, देन डोंट मेक कैश एंड बैंक अकाउंट सेपरेट। इज दिस क्लियर? And now how to record the transactions in these books? So it is exactly same as you post the entries in cash and bank account. ये कैश और बैंक अकाउंट ही है। ये दो चिन्ह तो खाली रहने वाले हैं। RNOLF, PNOLF, रिसीट नंबर, वाउचर नंबर, प्रूफ वाले तो खाली रहने वाले, नंबर है वहां पे। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, दो अमाउंट है, वन फॉर कैश, वन फॉर बैंक। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। इसका भी हिंट ऊपर है, रिसीट्स, पेमेंट्स। पैसा आया, पैसा गया। हाउ टू रिकॉर्ड? जस्ट लाइक यू रिकॉर्ड, जस्ट लाइक यू पोस्ट इन द कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ये कैश और बैंक का पोस्टिंग ही हो रहा है, खाली विथ नरेशन, खाली विथ नरेशन। समझा यहां तक? 3 प्रकार के कैश बुक हमने डिस्कस किए थे। एक था सिंगल कॉल, उसमें कौन सा कॉलम होता है अमाउंट का? कैश। डबल कॉल, कैश एंड बैंक, डिस्काउंट, कैश एंड डिस्काउंट। ट्रिपल कॉल, कैश, बैंक, डिस्काउंट। तो ये क्या है? डोंट राइट हाइब्रिड। इट इज कॉल्ड कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। इज इट सिंगल, डबल, ट्रिपल? नहीं, कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। इज दिस क्लियर? नाइदर सिंगल नॉट डबल नॉट ट्रिपल कॉलम, अलग ही है अपना ही दुनिया में, लेकिन बेस्ट कैश बुक टू मेंटेन, जिसमें कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन डिटेल में दिखते हैं, डिस्काउंट वगैरह जेपी में चले जाते हैं। अच्छा, जैसे सब्सिडरी बुक में जो एंट्री सब्सिडरी की नहीं थी उसके लिए नोट्स लिखते थे आप, वैसे कैश बुक में जो एंट्री कैश बुक में नहीं है, नहीं आने वाली है, उसकी क्या करनी है? नोट्स समझ में? अभी चेक्स के कुछ रूल्स याद रखने हैं। मुझे बताओ, व्हेन यू रिसीव अ बेरर चेक, treated as cash. When you receive a cross check, बैंक। लेकिन कोई भी चेक दिया है तो बैंक के पैसा हमारे बैंक से जाएगा ना, पता है आपको? चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, बैंक सीधा पैसा बैंक में गया। बट चेक रिसीव टुडे and deposited after 2, 3, 4 days. So right now cash, and then when you deposit it, bank to cash, कॉन्ट्रा भी क्या बताऊंगा, कॉन्ट्रा किया कॉलेज में, वो भी बताऊंगा। So बैंक टू कैश, बैंक बढ़ेगा, कैश घटेगा। ओके, दैट्स कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रा एंट्री। सो बैंक टू कैश, बैंक बढ़ा, कैश घटा। वो कब? जब चेक को बैंक में डिपॉजिट करोगे तब। उसके बाद हमने देखा था एंडोर्स चेक, याद है किसी को? एंडोर्स चेक, एंडोर्स चेक का मतलब आया हुआ चेक किसी को फॉरवर्ड किया। तो अजय से चेक आया, वही चेक मैंने विजय को फॉरवर्ड किया,
तो क्या कौन सा कॉल मतलब कौन सा अकाउंट यूज करो, कैश की बैंक? एंडोर्स चेक के लिए सोचो। सेम डे एंडोर्समेंट है तो आज आया दूसरे दिन भेजा तो कैश, यू ट्रीट इट एज कैश, डोंट पुट इट इन द बैंक क्योंकि एंडोर्स चेक नेवर रीचेस बैंक। आया तो भी कैश और गया तो भी कैश। अंकिता मोनाली याद है, कैश टू अंकिता, मोनाली टू कैश, 11 सम 19 सम ऑफ सेम स्टफ। आया तो भी कैश, गया तो भी। इन शॉर्ट एंडोर्स चेक इज कैश, कैश एंड ओके। डिसऑनर वगैरह कैसे करना बताता हूं मैं सम के साथ। ऑल ऑफ यू टेक नाउ सम नंबर, ड्रॉ किया हुआ है ना सबने। पहला तो सिंपल कैश बुक है, वो आपको नहीं है, सोमैया पूछता है। नाउ all of you take some number 4, fourth sum. Record the following transactions of Manas Traders in cash book with cash and bank column for the month of July 2011. So in the cash book of ऊपर लिख देने का Manas Traders, Manas Traders, sum number 4. Let's begin. Started business with cash. Tell me the journal entry. Cash to capital. And this is cash account. So what will you write? Cash में to capital account. Simple. जैसे कैश की पोस्टिंग कर रहे हो सेम वे, सिर्फ नरेशन लिखना है being capital introduced. Being capital introduced. डेट लिख देना है 1st July 11 and 1 lakh. सॉरी क्या, जैसे कैश अकाउंट बनाते थे वैसे कैश और बैंक अकाउंट ही है, खाली विथ नरेश। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बिजनेस का फर्स्ट ईयर है कि कंटिन्यूइंग, फर्स्ट मंथ है कि कंटिन्यूइंग मंथ? फर्स्ट मंथ है। क्यों फर्स्ट मंथ है? स्टार्टेड बिजनेस है। लेजर के वैसे 3 पार्ट होते हैं, ओपनिंग बैलेंस, पोस्टिंग एंड क्लोजिंग। यहाँ पे कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। ओपनिंग बैलेंस नहीं है इसका मतलब ये कौन सा महीना है? पहला महीना। अभी कैपिटल आया बिजनेस में, बराबर है। अभी पोस्ट कर रहे हैं और फिर क्लोजिंग ढूंढेंगे। सेम लेजर का ही प्रोसेस है, डिट्टो से। ओपन अ करंट अकाउंट विद बैंक एंड डिपॉजिटेड 35,000। तो बैंक टू कैश, नाउ बैंक टू कैश एंड कैश टू बैंक, इन दोनों को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि इनका एक इफेक्ट नहीं होता, इनके 2 इफेक्ट होते हैं। क्योंकि बैंक अकाउंट भी यहीं पर है और कैश अकाउंट भी यहीं पर। तो इसका मतलब क्या कर रहे हो? बैंक टू कैश का मतलब क्या? बैंक में पैसा बढ़ा और कैश में पैसा घटा। ये समझ में आया?